Hello student, welcome back to my channel. I am Dr. Chetna Rathore and you all are here on Praman's Math. I am your teacher, mentor, guru. Praman Maths means the proof of excellence. Here we give you a better and easy way of mathematics. Let's start your first chapter, students. Hope you are all are good and you enjoy your new class 10th. Let's start our first chapter. We already discussed number system in our previous classes. We further divided number system in different number forms. You already discussed rational number, integer, reals. First of all, we divide number system in two parts, real numbers and complex number. Complex numbers you all are studied in your higher classes. Here we know or we discuss only about real numbers. Real numbers further divided into two categories. Already discussed in your previous classes, rational number, irrational numbers. Rational numbers further divide into integers, whole numbers and the natural numbers. All natural numbers are whole numbers. All whole numbers are integers. All integers considered in rational numbers. One by one we discuss all numbers in this video. Student, in your 10th class, the chapter 1 is real numbers. Real numbers, we discuss in this chapter rational numbers, irrational numbers, prime numbers, whole numbers, composite numbers. One by one we discuss each of them. Student, first of all, we discuss our natural numbers. Natural numbers are counting. Counting 1, 2, 3, 4 and so on up to not infinity or not defined number. This series is not stopped, not defined, or we call it infinite. Student, natural number, all positive numbers are natural number. If we include 0 in this series, the numbers are called whole numbers. If we include 0, 1, 2, 3 and so on and the negative numbers also, then we call these numbers are integers. Hope you understand natural number, whole number, integers. Now, between these integers, there are some more numbers in fraction form. Suppose 1 by 2, 1 by 2, 3 by 4, minus 1 by 6, minus 1 by 9. These numbers are called rational number. They are in form of P by Q. P and Q are composite number, co-prime numbers. P and Q are co-prime numbers and Q is not equal to 0. Now, I use here a word co-prime. Now, first we discuss prime numbers. Then we discuss co-prime. Hope you understand the both number prime and co-prime. First of all, prime numbers. If I say 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. These numbers are called prime numbers. Here we say a number which is greater than 1. Greater than 1. हमेशा 1 से greater होगा. And exactly have two factor. Greater than 1. Greater than 1 and exactly have two factor. And these two factor includes 1 and the number itself.
itself, a number itself. Like the factor of 2 is 1 and 2, factor of 3 is 1 and 3. 3 is not divisible by any other number except 1 and 3 itself. Similarly, 13 is the prime number because it has two factor, 1 and 13 only. 23, 29 and so on. These numbers are always infinite numbers. There are infinite prime numbers, but the definition of prime number is if the number is exactly divisible by 1 and itself. तो होप यू अंडरस्टैंड द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन से होंगे? वो नंबर जो हमेशा 1 से तो बड़े होंगे. 1 प्राइम नंबर नहीं आता. 1 कैसा है? एक यूनिक नंबर है. 1 को हम प्राइम में नहीं लेंगे. प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होंगे? आपके 1 से बड़े, 2 से. और मेन पहचान क्या है, क्या कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे प्राइम नंबर्स को? कि वो नंबर जो आपके सिर्फ 2 ही फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं. कौन कौन से फैक्टर? या तो 1 या फिर वो नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही होना चाहिए. तो वो सारे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. अब को प्राइम नंबर्स की बात करें. यदि मैं एक पेयर लूँ 2 और 3, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है. और को प्राइम क्यों है? कि दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? सिर्फ 1 से. दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1. यदि मैं 4 और 5 लूँ तो आप कहोगे 4 तो मैम प्राइम नंबर नहीं है. बट ये पेयर कैसा है? को प्राइम है, क्योंकि ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं? सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं. यदि मैं एक पेयर लूँ 7 और 9, एक पेयर लेती हूँ 11 13, एक पेयर लेती हूँ 11 12, तो ये वो पेयर बन गए जिनका जो किससे डिवाइड होंगे? सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे. तो ये कैसे पेयर कहलाते हैं? को प्राइम. तो मैंने रैशनल नंबर में कहा था P और Q क्या है? को प्राइम. इनका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा P और Q का, वो क्या होगा? 1. समझ में आया स्टूडेंट कि रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में है और वो किस तरह के हैं? वो को प्राइम है, क्योंकि उन दोनों के जो फैक्टर्स होंगे, यानी कि जैसे हम लिख दें 3/4, तो 3 और 4 किसी के और टेबल पे तो नहीं कटता, सिर्फ 1 पे ही कटता है. ये लास्ट इसका लोएस्ट फॉर्म ऑफ आपका फ्रैक्शन हो गया. यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 12/16, 12/16 लिख दूँ, तो क्या ये को प्राइम है? नहीं. ये तो आपके 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाता है. 4 3 4 4 तो 3/4 क्या है? रैशनल नंबर है. और 3 और 4 क्या है? एक को प्राइम फैक्टर. को प्राइम नंबर्स है, इनका कोई और फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. क्या आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हुई स्टूडेंट? होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं. कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो ही नहीं सकती. तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्रमाण मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वे से अपने चैनल पे आपको बहुत सारा मैथमेटिक्स सिखाते रहेंगे. चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. इससे एक स्टेप आगे, जब आप प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आते हैं कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर कौन से होंगे स्टूडेंट्स? अब प्राइम नंबर्स तो वो थे जो सिर्फ अपने टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे थे, और कंपोजिट नंबर कौन से होंगे स्टूडेंट? जो किसी और टेबल पे भी कैंसिल आउट हो सकते हैं. कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? अ नंबर ग्रेटर देन 1. अ नंबर ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन तो 1 होगा ही. फॉर एग्जाम्पल, अब 2 को क्या कंपोजिट कहोगे? नहीं. 2 तो हमारा किस में चला गया? प्राइम में चला गया. 3 भी प्राइम में चला गया. हम ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, बट स्टार्ट कहाँ से होगा? 4 से. 5 नहीं लेंगे. 5 किस में चला गया था? प्राइम में. 6 7 लेंगे? नहीं. 8 9 लेंगे? यस लेंगे. 10 लेंगे. तो ये नंबर कौन से नंबर होने तो चाहिए? ग्रेटर देन 1, बट इनके फैक्टर 1 भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है, और ये खुद इटसेल्फ हो सकता है. यानी 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा. तो मेन हम क्या कह सकते हैं? वो नंबर
जो ग्रेटर देन 1 है और उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर। 2 से ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट? 1 और इटसेल्फ तो हो जाएंगे तो प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। प्राइम नंबर्स वही थे ना जो 1 और इटसेल्फ पे जा रहे थे, बट कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। 1 हो सकता है, इटसेल्फ हो सकता है और उससे आगे भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे ये किस किस पे जाएगा? 1 पे, 2 पे, 4 पे, ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 4, 8। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 5, 10। तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए ना, तो कंपोजिट नंबर समझ में आया। फंडामेंटल थ्योरम जो आपके टेंथ के बोर्ड एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट थ्योरम है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टूडेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये थ्योरम क्या कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। एवरी composite number is defined in the form of prime numbers. For example, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट हम? लेट कोई कंपोजिट नंबर ले लिया आपने, जैसे 226 ले लिया, 126, 226 भी ले सकते हो। मेरे मुंह से 226 निकला है, 226 ले लेते हैं। 226 एक नंबर ले लिया, तो अब हम इसको क्या प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं? बिल्कुल। आपने छोटी क्लासेस में ट्री मेथड किया था, आपने इस तरह से किया था, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 113। 2 की डिविजिबिलिटी स्टूडेंट, अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपका क्या नंबर है? प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है ना। तो 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट में आपका इवन नंबर आना चाहिए। 3, 4, 5, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता। तो क्या कैसे चेक कर सकते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर को चेक करने के लिए स्टूडेंट इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट आपको लोअर क्लासेस में सिखाया है, हम बैक से पेयर करते हैं। 13 और 1, 1 1 जा 1, इसको डबल कर देते हैं 2, ऊपर से दोनों टर्म नीचे। तो क्या ये 2 0 पे जाएगा? नहीं, आपको एक 0 लगाकर पेयर उतारना होगा और ये 6 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 6। अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा √106। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 107 से छोटा होगा 113। स्टूडेंट ध्यान से देखना है कि किसी नंबर को आपने चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो आपने सबसे पहला स्टेप करना है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो। इसका स्क्वायर रूट देखो, ये हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या यहाँ पे 0 आता है? 10 - 6 is 4, 9 - 3 is 6, 64 लेफ्ट है। इसका मतलब ये 107 से छोटा हुआ। 107 क्या है? आप बता सकते हैं क्या? ये इससे छोटे प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं? इससे छोटे प्राइम नंबर्स क्या होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और बहुत सारे नंबर। 113 क्या इनमें से किसी से डिवाइड होगा? सिर्फ किससे डिवाइड हो रहा है? किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 113 से ही डिवाइड हो रहा है। ये आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हो। तो 113 कैसा नंबर हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। तो 226 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 2 × 113। होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा कि 113 कैसे प्राइम है। एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं, इजी रहेगा आप जब उसको सीखेंगे। क्या रहेगा स्टूडेंट? देखो, एक नंबर और लेते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 571 एक नंबर है, चलो कोई। अब हमने ये चेक करना है कि 571 प्राइम है, प्राइम और नॉट प्राइम। चेक करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 571 का पेयरिंग पीछे से करते हैं। 2 2 = 4, 5 - 4 is 1, ऊपर से पेयर आएगा नीचे पूरा।
इसका डबल हो जाता है 4। 4 के टेबल पे 171 यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, होप आपको स्क्वायर रूट नहीं आता है। यदि नहीं निकालना आता स्टूडेंट, मैं इसकी एक और वीडियो बना दूँगी, उस वीडियो पे क्लिक करके आप अपना स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो 4 जैसे देखो हमने इसको 4 से किया मल्टीप्लाई, तो 4 16 176 बनता है। उससे बड़ा हो गया तो हम 3 पे कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 24 ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट ऑफ 571। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे कि वो चीज़ मैंने कैसे लिखी थी कि 24 से तो 571 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो अप्रॉक्सीमेटली 23 आ रहा है, तो इसका मतलब 24 बड़ा होगा इसके स्क्वायर रूट से। तो 24 से पहले सारे प्राइम क्या होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 21 23। आप चेक करोगे कि 571 इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। दिस एम्प्लाइज 571 इज प्राइम। तो होप आप ऐसे ही और बाकी किसी भी नंबर को लेकर, सपोज आपने नंबर ले लिया 236, आप चेक कर सकते हो क्या ये प्राइम है या नहीं, पर आपने देख लिया ये तो वैसे ही दिख रहा है कि लास्ट में इसके इवन नंबर आ रहा है तो प्राइम तो नहीं हो सकता, फिर भी आप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप ले सकते हो 137 ये ले लिया आपने नंबर है, आप इसको चेक कर सकते हो। आप 2679 इसको चेक कर सकते हो कि क्या ये प्राइम है या नहीं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना क्या आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्या इजी वे से फाइंड आउट किया कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। लेट करते हैं अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा बताया था अभी, वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। सपोज आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन है 140 एक नंबर है, बताओ ये कैसा नंबर है, कंपोजिट है क्योंकि 1 और 140 से ज़्यादा इसके फैक्टर होंगे। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें। सबसे पहले 2 सबसे छोटा प्राइम है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 70 आएगा। फिर लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट में या तो 0 हो या इवन नंबर हो। हम इसको फिर डिवाइड करते हैं कैसे, 2 3 ज़ा 6 कैरी 1, 2 5 ज़ा 30, 2 5 ज़ा 10, अब 35 आ गया। अब ये 3 की डिविजिबिलिटी 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है क्या दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो 8 आता है। 8 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट में या तो 2 ज़ीरोस होने चाहिए या लास्ट की 2 डिजिट्स का सम इवन होना चाहिए, वो भी नहीं है। 4 नहीं होगा इसका, 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से, लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 7 ज़ा 35 और ये सारे नंबर्स क्या आ गए आपके प्राइम। तो 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये बन गया आपका कंपोजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ कौन से नंबर्स, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स ये नहीं है कि सिर्फ वन टाइम ही एक नंबर आएगा, रिपीट हो सकते हैं। हर नंबर का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे आपका एक्सरसाइज का ही सेकंड क्वेश्चन है 156। 156 के फैक्टर्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने कितने नंबर होंगे आप मुझे फिल करके दिखा सकते हैं। 2 के टेबल से 78, फिर 2 के टेबल से 39, फिर 3 के टेबल से 13 आ गए फैक्टर्स। 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो ही नहीं सकती क्योंकि हम प्रमाण मैथ में द प्रूफ ऑफ एक्सीलेंस को प्रूव करते हैं। यहाँ पर हर चीज़ एक्सीलेंस से आपको प्रेजेंट की जाती है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है ही नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल प्रमाण मैथ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं।
स्टूडेंट, ये तो फंडामेंटल थ्योरम में जैसे हमने बात की प्राइम फैक्टराइजेशन की, कंपोजिट नंबर की। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन हम एक जगह और यूज़ करते हैं। आपने लोअर क्लासेस में ये लेटर्स पढ़े होंगे, LCM, HCF। कई बार हम इनके नाम में कंफ्यूजन हो जाते हैं। HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक इसको हम इसी को ही हम डिफाइन करते हैं GCD से। GCD को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, याद रहेगा स्टूडेंट। और इस HCF को ही हम बोलते हैं GCM। GCM होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर ज़रूर करते चलना। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स जिनके बीच, जैसे मान लो 2 कंपोजिट नंबर ले लिए, उनमें बताना है कि इसका हाईएस्ट इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। और LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं LCM और HCF में। स्टूडेंट, HCF में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा हाई यानी कॉमन फैक्टर क्या है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में निकालते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है, लीस्ट सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 12, 15, 21। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हो GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी कर सकते हो GCM। स्टूडेंट, HCF, सबसे पहले जब भी HCF या LCM निकालना है आपको इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हो स्टूडेंट। चलिए, 15 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 5, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और यहाँ में 2 की पावर 0 लिख सकते हैं स्टूडेंट। यस, लिख सकते हैं। चलिए, 21 के फैक्टर 3 इंटू 7 कैसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट? 2 की पावर 0 लिख सकती हूँ, 3 की पावर 1 लिख सकती हूँ, 5 की पावर 0, 7 की पावर 1। क्या कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। स्टूडेंट देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है जो सब में है? देखो, 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, बट क्या इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं, सिर्फ 2 की पावर 0 ही सब में है, और 2 की पावर 0 तो 1 होता है, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, तो हम 5 भी कॉमन नहीं ले सकते। 7 सिर्फ यहाँ है ही नहीं, सिर्फ 3 की पावर 1। तो HCF ऑफ 12, 15 और 21 क्या होगा स्टूडेंट? 3। होप ये आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं, पर थोड़ा सा यहाँ समझाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है। सिमिलरली हम LCM भी कर रहे हैं। LCM ऑफ, यदि इन्हीं तीनों नंबर का LCM निकालना हो, LCM ऑफ 12, 15, 21। स्टूडेंट, सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 2, 3 की सबसे हाई इंटू 3 की पावर 1, 5 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, और 7 की पावर कितनी है? 1। चलिए, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज 12 इंटू 35। 12 इंटू 35 कर सकते हो, या फिर 20 इंटू 21 कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 420। देखो, ये सॉल्व कर सकते हो ना, 42 बनेगा इंटू, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 420 क्या है? सबसे
लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसको 12 भी डिवाइड करेगा, 15 भी डिवाइड करेगा, 21 भी डिवाइड करेगा। डिफरेंस समझ में आया? 3 ऐसा नंबर है जो 3 यानी कि इस 12 के टेबल पे भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 21 भी आता है। इन तीनों के टेबल में ये कंसीडर होता है नंबर, है ना। 3 के टेबल में 12, 3 के टेबल में 15, 3 के टेबल में 21। यहाँ पर बात करते हैं 12 डिवाइड करेगा 420 को भी, 15 डिवाइड करेगा 420 को, 21 डिवाइड करेगा 420 को। क्लियर है स्टूडेंट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये इन सबको डिवाइड करेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये सारे नंबर इसको डिवाइड करेंगे। रेफरेंस क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जब आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर पहुँचते हो, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। किसका? 26 एंड 91। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26, 2 इंटू 13, ये दोनों ही प्राइम है। 91 2 के टेबल पे तो नहीं कैंसिल होगा, 3 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं। 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे कहाँ जा रहा है? 13 के टेबल पे जाएगा। 13 7 सा 13 इंटू 7, और किसी टेबल पे कैंसिल आउट नहीं हो रहे। चलिए एचसीएफ बता सकते हैं? एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों में है? 13। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें 26 और 91 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 2 इंटू 13। अब आप कहोगे मैम इसमें भी है इसमें भी दोनों बार, नहीं, हमें क्या लेना है? हाईएस्ट पावर। दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है? 1 ही है, तो 1 टाइम लेंगे। क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट? तो 26 इंटू 7 लिख सकते हो, और कितना आ जाएगा? 182, क्योंकि 7 6 42, 4 कैरी 14 and 4 is 18. This is the least common multiple. आपको एक और चीज़ वेरीफाई करनी है, LCM इंटू HCF हमेशा याद रखना है। LCM इंटू HCF ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से नंबर? जिनका हम LCM और HCF निकाल रहे हैं। ये रिलेशन याद रखना है। इस रिलेशन से भी कई बार MCQ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए बताइए, LCM कितना था? 182, और HCF कितना है? 13। प्रोडक्ट ऑफ 26 और 91। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके इक्वल आएगा? राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट? तो ऐसे ही आप ये फर्स्ट पार्ट किया है, ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या है? आपको 510 एंड 92 के क्या निकालने हैं? HCF और LCM। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन निकाल के आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टैग करेंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी हम LCM और HCF की ही बात कर रहे हैं। क्या कौन सा आपको अप्लाई करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसके ऊपर? 12, 15 और 21। ये क्वेश्चन मैंने शायद अभी करवाया है ना? तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। चलिए मैं सेकंड पार्ट करवा देती हूँ। 17, 23 एंड 29। अरे आपको नहीं लग रहा ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं? हमने करा था। तो HCF क्या होगा? 17, 23 और 29 का 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। LCM जब भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स का LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम नंबर्स। याद रहेगा स्टूडेंट? कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो ही नहीं सकती। चलिए थर्ड का थर्ड पार्ट करते हैं। 8, 9, 25 ये आपके नंबर्स गिवन हैं। पहले हम HCF निकालेंगे 8, 9, 25 के, है ना?
और HCF निकालने के लिए 8 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 और 25 का 5 इंटू 5। तो HCF आपको देख रहे हो यहाँ पर तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो HCF हो गया 1। फिर ये कैसे नंबर है, आप क्या कहोगे, ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स। याद आ गया ना स्टूडेंट। और LCM क्या होगा, 8, 9 और 25 का प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर। होप आप अंडरस्टैंड कर गए हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF ऑफ 306 एंड 657। ये आपको गिवन है, ये गिवन दिया हुआ है 9। आपको फाइंड आउट करना है LCM ऑफ 306 और 657। ये आपको फाइंड आउट, एक रूल बताया था अभी, फटाफट से बता दीजिए। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही बताया था ना अभी पीछे रूल। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। LCM हमें फाइंड आउट करना है, HCF अभी 9 दिया हुआ है, 306 इंटू 657। तो LCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 से तो कैंसिल आउट होना ही चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से कैंसिल आउट है। ऐड करो, 6 + 3 9। यस, 3 से तो कैंसिल आउट है, तो हम कर देते हैं 3 1 0 2 2 और 1 3, फिर 3 से कैंसिल आउट हो गया। चलिए कितना हो जाएगा, 34। तो हम LCM लिख सकते हैं 34 इंटू 657। क्या हम इसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कर सकते हो 28 22 26 21 17 19 8 3 13 12 and 2 2 2 3 3 8 is the LCM of. This is our answer. Hope you can understand. कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टूडेंट ये थोड़ा ये देखो, जो क्वेश्चन है ये अभी तक जो हमने किया है उसी से ही मैच करता हुआ क्वेश्चन है। चेक करना है whether 6 raised to power n can end with digit 0। और ये फॉर n, यहाँ पे ये जो n है, n क्या है, एनी नेचुरल नंबर। अब देखो 6 की पावर n है, इसके मैं प्राइम फैक्टर लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 रेज टू पावर n। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। स्टूडेंट ध्यान देना, उसने कहा है कि 6 की पावर n, यानी 6 को यदि मैं मल्टीप्लाई करते, 6 की पावर यदि 2 होती है तो उसको हम 2 टाइम्स लिखते हैं। 6 की पावर 3 होगी तो मैं उसको 3 टाइम्स लिखूंगी। अब 6 की पावर n है, इसका मतलब मैं 6 इंटू 6 इंटू 6 अप टू ये कहाँ तक चलेगा, n टाइम्स तक चलेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो सकती। अब देखो उसने कहा है कि यदि 6 की पावर n, 6 को हम n टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या उसमें लास्ट की डिजिट जो वंस प्लेस, ये जैसे 36 आया, ये 216 आया, तो लास्ट डिजिट क्या 0 हो सकती है। 0 कब आती है स्टूडेंट, या तो हम 10 से मल्टीप्लाई करें या फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, तभी आती है ना। तो यहाँ तो देखो ना, यहाँ पे 5 फैक्टर आ रहा है या ना 10 फैक्टर आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इफ देयर इज अ प्राइम फैक्टर 5 is available in prime factorization, then it will be and with digit 0। क्लियर है ना स्टूडेंट, तो समझ में आया कि यदि 5 इसमें फैक्टर होगा तभी ये एंड होगा 0 से, अदरवाइज ये 0 पे एंड नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद
डिजिट 0। क्लियर है स्टूडेंट? कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो ही नहीं सकती। एक होमवर्क क्वेश्चन 5n। इफ क्वेश्चन है चेक करना है आपको 5n कैन एंड विथ 2 डिजिट 2 फॉर एन नेचुरल नंबर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके। ये भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें 7 × 11 × 13 + 13 है, ये एक कंपोजिट नंबर है। अब बताओ कैसे। देखो ये एक एक्सप्रेशन है प्लस ये एक टर्म है, तो हम दोनों में से 13 को कॉमन ले सकते हैं। लेफ्ट आउट क्या रह जाएगा? 7 × 11 + 1, और मैं लिख सकती हूँ 7 × 77 + 1 और 13 × 78। और 78 कैसा नंबर है स्टूडेंट? इवन नंबर, और इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होगा एक्सेप्ट 2 है ये, तो ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जिनमें से एक कंपोजिट नंबर है, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा कंपोजिट नंबर। बताई थी ना डेफिनेशन कंपोजिट नंबर की, कि वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 है और उसके फैक्टर क्या होने चाहिए? मोर देन 2 होने चाहिए। तो ये दो मोर देन 2 ही हो रहे हैं, 13 भी है, 1 भी है, 2 भी है ना, हो रहे हैं ना। तो ये क्या सा हो गया? कंपोजिट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। यदि हम इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में भी उसने ये बोला 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये पूरा एक एक्सप्रेशन प्लस ये एक टर्म है, तो दो चीज़ें ना, एक ये टर्म है, पीछे प्लस का साइन है, और ये एक टर्म है। तो दो टर्म में से हम एक नंबर कॉमन ले लेते हैं जो है 5। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। जब इसको सॉल्व करूँगी तो कैसा नंबर आएगा स्टूडेंट? एक कंपोजिट नंबर ही तो हो जाएगा। ये लिख के दिखाएंगे आप? चलिए लिख लेते हैं। 42 × 6 2 24 + 1। तो ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 42 × 24 स्टूडेंट 8 16 4 8 8 10 10, और +1 कर देते हैं 5 1 0 0 9। तो ये कैसे नंबर हो गए? दो नंबर हो गए। जो क्या है, मल्टीप्लाई चेक कर लो, गलत तो नहीं करी ना। 8 16 4 8 10 एंड 10 बिल्कुल सही, एग्जैक्ट। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो ही नहीं सकती। तो ये दोनों प्रोडक्ट नंबर, दो नंबर की प्रोडक्ट आ गई जो मोर देन 2 प्राइम नंबर्स हैं 1 और 5 के अलावा, है ना। तो 109 और 5 दोनों की प्रोडक्ट कैसा नंबर बनाएगी? एक कंपोजिट नंबर बनाएगी। तो ये कैसा नंबर है बच्चे? कंपोजिट नंबर है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम हर स्टेप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड पॉइंट। चलिए एक सर्कुलर है पाथ, दो हैं, एक सोनिया है और दूसरा रवि है। सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट्स और रवि को टाइम लगता है, सपोज यहीं पे ही है रवि, वो 12 मिनट्स लेते हैं इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट। ठीक है, इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए उसने कहा है कि दोनों सेम पॉइंट से चलते हैं, सेम प्लेस से चलते हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बताओ वो किस पॉइंट पे आकर मिलेंगे। देखो ये सोनिया है, बहुत 18 मिनट्स में इस राउंड को कंप्लीट कर लेती है, रवि 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। बताओ सोनिया 1 मिनट जैसे राउंड कंप्लीट कर रही है, तो रवि उसको दोबारा कब मिलेगा? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एक
या तो आप प्राइम फैक्टर से कर सकते हो या आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो। 2 की टेबल में कहाँ पर है 2 6 जा 2 9 जा, 2 के टेबल में 3 जा एंड 9 जा, तो ना इसको आगे कर सकते हैं 3 1 जा 3 3 जा और 3 1 1। कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 9 दैट इज 36 मिनट के बाद जो रवि और सोनिया सेम पॉइंट पर मिलेंगे। आफ्टर 36 minutes Sonia and Ravi will meet on same position। will again at ऐसे भी लिख सकते हो will meet on same starting point। क्लियर स्टूडेंट? होप कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज की वीडियो के लिए इतना बहुत साथ जुड़ने के लिए आप प्रमाण मैथ्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ध्यान रखना, अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना था हमने। देखो ए नंबर दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज एक्स वाई क्यूब। ठीक है, हमें HCF निकालना है। HCF अभी क्लास में अभी बताया है। HCF में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हाईएस्ट क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ए की में x की पावर कितनी है एक्स क्यूब और b में x की पावर कितनी है x, तो हाईएस्ट पावर दोनों में कौन सी कॉमन है x। और यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो कौन सी कॉमन है वाई स्क्वायर। तो HCF कितना आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। यदि आपको इस तरह से दिया हुआ है P दिया हुआ है AB स्क्वायर, Q दिया है A क्यूब B, हमें LCM निकालना है स्टूडेंट। LCM में क्या लिखा था, सबसे हाईएस्ट डिग्री दोनों में। देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है A क्यूब है ना, A की, और B की हाईएस्ट डिग्री कितनी है B स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका C। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो ही नहीं सकती। चलिए ये भी कर देते हैं। इसमें क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, अभी वीडियो में बताया था 1 2 3 एंड 4 का दो कंसेक्यूटिव नंबर का HCF। सपोज 1 और 2 का HCF कितना होगा, ये कैसे फैक्टर बन गया बच्चा, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर में क्या होगा कॉमन फैक्टर 1। ये 2 3 लेते हैं तब भी 1, 3 4 लेंगे तब भी 1, तो HCF ऑफ 2 कंपोजिट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो ही नहीं सकती। तो चैनल प्रमाण मैथ्स द प्रूफ ऑफ एक्सीलेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। टेक केयर, बाय बाय।